Good afternoon, students. So, first of all, I heartily welcome Dr. Daud sir on behalf of MVP's RSM Polytechnic to our college for accepting our invitation on data science. So, before we start with the session, let us understand what this particular session is, what will be the objective of this session, and what will be the outcome of this particular session. So, today in this session, we have the students of information technology of second year students and third year students. And the objective of this particular session, the session is on data science. Before we start with the program, so the objective one must understand. First thing is to understand the various different concepts in the data science and also to understand what exactly the term data science means. Secondly, we are going to have a simple demo on how the Python programming goes on. Then also we are going to understand what data visualization is there inside the data sciences. The outcomes, the participants will be able to write a simple program in the Python. They will be able to know what data visualization is, and they will be able to understand what are the various tools inside data science. So now let me take the opportunity to introduce our today's expert, Dr. Daud. He holds a PhD degree in philosophy and he is certified in deep learning. He has completed many different courses on artificial intelligence, machine learning, and he is also certified artificial intelligence. He's working as a data scientist and a trainer. He has a very strong background in mathematics, and he has a 10 years of experience in as a trainer in the various different companies like Accenture, Wipro, IIT Delhi. He's very highly skilled in machine learning, data visualization, and a creative thinking. So he is a complete package as a data scientist, as a trainer, and he is going to provide us a huge knowledge about the data science. Students, data science is one of the most trending technologies, or you can say most trending domain in which all the industries are going on. Yes, you are going to think that the term science comes into the scenario and how it will be related to the information technology domain. But yes, it is our domain and we are going to have it. So now I request our expert, Daud sir, to please take on the session. Thank you, Mr. Yosh. That's So, Before yeah, processing please. further, I would like to thank you, Vishwas, sir, for organizing this seminar. Without you, sir, this session was not possible. And no, first of all, I would like to tell that just every student grab the pen and paper so you can note down the points. And I would like to request Daud sir, please take ahead this session in the Hindi language so everyone can understand this. Thank you. Thank you. Shall I start now? Yes, sir. Share my first and then proceed. Okay. Can you see my screen now? Yes, sir, it is visible. Okay. Okay. Uh, what are you saying now? Yes, sir, it is visible. Okay. What are you saying now? Could you tell me the slide? Anything? Data science workshop slide, artificial intelligence and machine learning. Okay. So, Yogesh, what are you saying on my screen? Yogesh, are you there? Can you hear me? Vaibhav, Kuldeep, can you tell me what is the Yes, sir. Can you tell me स्लाइड के ऊपर क्या लिखा है आप बता सकते हैं जल्दी से Data science and workshop. ओके ओके ग्रेट ओके सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे डेटा साइंस के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका क्या मार्केट में स्कोप है ठीक है ऑलरेडी विश्वास सर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे चुके हैं ठीक है मैं कंटिन्यू करता हूँ ठीक है और
सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि आई एम डॉक्टर मोहम्मद दाऊद. आई हैड एन PhD in data science, and I'm also certified from deep learning Coursera AI. They have they are the FED courses, so I have done that. And also I'm certified from IBM, Intel, Incota, Udemy, SES, and I have done a lot of courses and batches and certification I've done. And you can go through also my YouTube channel, okay? And this is my LinkedIn profile. You can go through that. And I have previous experience from IIT Delhi. You know, that IIT is a very famous institute in India and also worldwide. And Monster, there's the American-based MNC company, Accenture, and Wipro. All these are the MNC companies. This is my basically background here. Okay. So before doing any delay, I'm going forward here. So first of all, I'll let you know about the EDGRO. So actually, EDGRO क्या है? EDGRO एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है. तो हमारा जो मेन फोकस है वो डेटा साइंस के ऊपर ट्रेनिंग कराना है. और मेनली इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग जिसके ऊपर फोकस करते हैं वो ट्रेंड है. जो कंटिन्यूसली जो ट्रेंड चेंज होता है मार्केट के अंदर, हम वो कंटिन्यूसली उसको फोकस करके वही चीज़ पिकअप करके वही चीज़ हम आगे डिलीवर करते हैं स्टूडेंट को. और इसके अंदर हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड कराते हैं. और जो लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड है, क्योंकि डेटा साइंस अगर आप देखोगे तो बहुत जगह सब कुछ आपको बैनर ये सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका जो ट्रेनर वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसका क्या बैकग्राउंड है, कितना एजुकेटेड है, कितने पास उसके पास बैचेज और सर्टिफिकेट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और दूसरा इसमें क्या कि हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं ना कि सिर्फ एक आपको थियोरेटिकल ट्रेनिंग, हम आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराएंगे. जो चीज़ हम लोग बोलेंगे, कमिटमेंट करेंगे, वही चीज़ हम आपके हैंड से कराएंगे, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, 1-to-1 टेक्निकली. और मेनली हम लोगों का जो फोकस रहता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग यूजिंग द पाइथन. ओके, so that is an introduction about the EDGRO. ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले डेटा साइंस होता है क्या है. निकिता, आप बता सकते हो, अगर आपके माइंड में सबसे पहले वर्ड आया डेटा साइंस तो आप क्या बोलोगे? कैन यू हियर मी नाउ निकिता? साक्षी, कुलदीप, कैन यू हियर मी नाउ? हेलो, प्लीज गिव मी द रिस्पॉन्स. Yes, sir. Yeah, please give me the immediate response. तो अगर डेटा साइंस आपके माइंड में वर्ड आया, सबसे पहले कौन सा क्या चीज बोले, क्या होता है डेटा साइंस? सर, हमारा जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उसके बारे में हमारे डिटेल जानकारी मिल सकती है उससे. ग्रेट, गुड. योगेश, आपका क्या ओपिनियन है? योगेश, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जयश्री, हाँ बोलिए, एकदम रिस्पॉन्स आप जल्दी कीजिएगा. क्या होता है डेटा साइंस? अगर आपको फर्स्ट, अगर मैं थॉट आपके माइंड में क्या आएगा डेटा साइंस का? ओके, एनीवे, तो मैं बताता हूँ डेटा साइंस होता है क्या है. So data science is a data-driven process that includes the data pre-processing, data cleaning, data visualization, analysis and data production. देखो सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, जो हमारे पास में डेटा आता है वो एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं होता कि हम उसको सही प्रेजेंट कर सके. अगर मैं आपको 10,000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एक शो करूं एक टेबल में या एक्सेल फाइल में, एक्सेल शीट तो आप लोगों ने देखी है ना? हेलो योगेश, निकिता, कुलदीप, प्लीज गिव मी द इमीडिएट. यस सर. देखा है ना डेटा? हाँ देखा है डेटा. ग्रेट. तो अगर मैं आपको 10,000 लोगों का डेटा एक एक्सेल शीट में बता दूं और मैं बोलने लगूं उसके बारे में एनालिसिस कीजिए, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतना लंबा रोज कॉलम्स है, रोज है, 10,000 आप कैसे स्क्रॉल करोगे और कैसे बताओगे? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यही बोलने लगूं कि महाराष्ट्र में किस एरिया में ज्यादा कोविड के केस है और किसमें क्या पॉजिटिव रेट है, क्या है, मतलब मैं अलग अलग स्मॉल जो आपका एरियाज हैं उनको मैं डिवाइड कर दूं. सपोज यूआर पिन नंबर, सपोज मुंबई में
100 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं, पिन नंबर है, ओके। तो उसको आप कैसे आप वहां पे एनालाइज करके बताओगे कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पॉजिटिव रेट है, क्या रेट है। तो वो सब चीजें आप नहीं कर पाओगे। और दूसरा क्या है, जब आपको डेटा मिलता है तो उसको क्लीन इसलिए करना पड़ता है, बहुत सारे अनवांटेड फीचर होते हैं। अनवांटेड फीचर का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको यूज ही नहीं करनी है डेटा में, तो उस चीज को आप डेटा क्लीनिंग करते हो। एट द एंड आपको एक डेटा को एक इंफॉर्मेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करना है, जिससे कि आप, आपका मैनेजर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। तो आप सही से उसको एक ऑर्गेनाइज वे में प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर, अगर अच्छे से आपने बार चार्ट ऐसा कुछ प्लॉट बना दिया, तो आप इजीली देख के बता सकते हो कि हाँ, इस पर्टिकुलर एरिया में जो हमारा जो पॉजिटिव रेट है एज कम्पेयर टू द टेस्टिंग, वो कम है, इसमें ज्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है जो रियल टाइम में, वो इसी डेटा के ऊपर लेती है। उनको एक प्लॉट दिखाया जाता है, अकॉर्डिंगली जो एक्सपर्ट होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल एक डेटा साइंस का एक डेटा साइंटिस्ट का एक वर्क हो गया, ठीक है, जो हर वक्त हर टाइम किसी भी फील्ड में यूज होता है। मैंने पेंडेमिक का इसलिए लिया क्योंकि हॉट टॉपिक है, ठीक है। आगे मैं कुछ और डिफरेंट एग्जांपल लूंगा। सेकंड, वी कैन इम्प्लीमेंट द मॉडल बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब आपने बोल दिया कि सर ठीक है, हमने ये सब चीजें एनालिसिस कर दी, लेकिन हमको फीचर के बारे में कैसे पता लगे, हम पहले से प्लानिंग कर सके। क्योंकि एट द एंड आपका क्या है, आप डेली तो डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आपकी फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी है ना, कि कितने बेड आपको चाहिए होंगे, किस पर्टिकुलर एरिया में कितने कितने चाहिए होंगे, क्योंकि जो ट्रेंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली। तो फिर आप क्या करोगे, आप एक मशीन लर्निंग एज ए डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर, एक जो आपका हिस्टोरिकल बिहेवियर है, कि मेरा लास्ट वीक जो 2000 केस आया था, फिर उससे नेक्स्ट डे आया 2015 एक्स्ट्रा हो गया, फिर 30 एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे करके आप एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे, फिर एक मॉडल ट्रेंड करोगे पूरा 1 महीने के या 2 महीने के हिस्टोरिकल डेटा पे। और फिर आप बता दो कि नेक्स्ट 15 डेज में कि कितने केस आ सकते हैं। आप पढ़ते हो ना न्यूज कि आने वाले टाइम में अभी पीक नहीं आया है और 15 ऑफ जो सॉरी मई को इतना केसेस आएगा। तो वो सब मॉडल आपको बता सकता है। तो ये जो कंटिन्यूसली जो काम हो रहा है ना, पूरा जो दुनिया में आप देख रहे हो, ये मैंने एक सिर्फ मॉडल बताया। अगर आप तो मुंबई से हो, मतलब महाराष्ट्र, अगर तो वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का बहुत सारा काम लोग करते हैं, आपको पता होगा। जानते हो आप निकिता साक्षी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में? पूजा, आप सुन पा रहे हो मेरे को? एनीवे, नो, वेरी डिले रिस्पॉन्स। एनीवे, तो ये सब चीजें हम प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो जॉब होती है वो डेटा साइंटिस्ट की होती है। मतलब पूरा मार्केट जो कैप्चर किया हुआ है, जैसे विश्वास सर ने बोला था, वो इसीलिए इसका इतना ज्यादा स्कोप है कि आप, मैं जितने भी एग्जांपल दूंगा आपके रियल लाइफ में आपके साथ हो रहे होंगे, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल, एक इजी लैंग्वेज में एक इंट्रोडक्शन है कि डेटा साइंटिस्ट का मेनली जो डेटा है उसके अंदर से आपको इंसाइट आइडेंटिफाई करने हैं, जो अनवांटेड फीचर है वो रिव्यू करना है, और फाइनली इसको एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन फॉर्म में आपको डिस्प्ले करना है। और श्योर फीचर एनहांसमेंट के लिए आपको एक मॉडल बनाना है ऐसा, जो फीचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट। सो एक्चुअली हमारा जो जब हम ये सब अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है, एक सिंपल है। आपको पता है, आपने सीएसवी फाइल देखी है या एक्सेल शीट देखी है, आप सोचोगे कि मेरा पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आप जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में बोला है कि आप उसको किसी एक प्रोसेस करना, मतलब किसी एक पर्टिकुलर, मान लें आप सपोज आप पाइथन यूज कर रहे हो, तो आपने उसको पाइथन के अंदर उसको इंटीग्रेट किया। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, डेटा क्लीनिंग। आपने बहुत सारे अनवांटेड फीचर है या कुछ एम्प्टी वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर एरिया का पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको वो डेटा क्लीन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप बोलूँ, कोई आदमी है, कोई स्टूडेंट है, आपने उसका हाइट ले लिया, उसका क्लास का जो सॉरी कोर्स का नेम ले लिया, सारी चीज ले ली, लेकिन उसका आपके पास में एनरोलमेंट नंबर नहीं है जिससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर, आप क्या करोगे? जब नहीं पता आपको एक्चुअल उसकी आइडेंटिटी नहीं पता है, तो आप उसको हटा दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिर आप उसको डेटा विजुअलाइजेशन करोगे। जब डेटा विजुअलाइजेशन में एक प्लॉट बना दो, फिर आप उसको एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो अब इस स्लाइड पे आते हैं। तो हमारा हमारा मेनली वर्क क्या है कि सबसे पहले आप हमेशा, ये चीज मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जैसे ही आप डेटा को इंसर्ट करोगे तो ये सारी चीजें आपको प्रोसेस करनी है, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लेंजिंग, ठीक है। और ये पूरा करने के बाद में फिर आपको डेटा आपको प्लॉट करना है। फिर उसके बाद में आप आता है डेटा एनालिसिस, एनालिटिक्स। उसमें क्या करोगे, आप इनसाइट आइडेंटिफाई करोगे। इनसाइट क्या आइडेंटिफाई करोगे आप? अ, आपने मैंने बोला कि पर्टिकुलर एरिया में आपने देखा नहीं, यहाँ पे टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन पॉजिटिव रेट कम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन है, जो सिचुएशन है सही है।
थिंक आप किसी दूसरे एरिया में गए, सेम पर्टिकुलर टेस्टिंग हो रही है लेकिन पॉजिटिव रेट बहुत ज्यादा है, तो आपने इनसाइड आइडेंटिफाई किया, और जब आपने ये इनसाइड आइडेंटिफाई किया तो आपको एक एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को इस चीज को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, क्योंकि चीजें ऐसे एज इट इज जाती रहेगी तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और प्लस आपने एक टीम को बोला कि नहीं मेरे को आज का नहीं है, मेरे को नेक्स्ट 15 डेज का डेटा प्रिडिक्शन चाहिए, ठीक है, वो मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पूरा डेटा का एक रिपोर्ट जनरेट करके अपने मैनेजर को बता दिया कि ये पॉजिटिव रेट है आज की डेट में, तो पूरा आपने एक रिपोर्ट बना दिया। ये बात क्लियर है साक्षी? कैन यू हियर मी नाउ? ये पॉइंट क्लियर है, यस या नो? निकिता क्लियर है? ओके ग्रेट। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आपने एक पूरा एक डैशबोर्ड एक रिपोर्ट बना दिया, तो अब आपका आया कि कुछ चीजें होती हैं कि प्रेडिक्ट करना। फॉर एग्जांपल सपोज योगेश सर है सर है आपके, तो वो स्टूडेंट के बारे में बता सकते हैं कि किसका कितना परसेंटाइज आएगा, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो आपको बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, और उनको ऐसे नहीं वो आपको वॉच करते हो, पिछले 10 साल से स्टूडेंट का बिहेवियर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो बता सकते हैं किस स्टूडेंट का कितना मार्क्स आएगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली लेकिन एक फिगर बता देंगे वो, क्योंकि वो उनका जॉब ही है, क्योंकि वो हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं और वो ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जो ह्यूमन की तरह बिहेवियर करता है, कि अगर मैं इसको हिस्टोरिकल डेटा दे दूं तो उसको पता है कि स्टूडेंट का किस जो उसका असाइनमेंट देते हैं उसको किस तरीके से करता है, कितने घंटे आवर्स वो स्टडी करता है, और क्लास में उसका क्या बिहेवियर है, ये सब पॉइंट अगर मैं दे दूं तो मैं एक मेरा मॉडल भी जस्ट लाइक योर सर विश्वास सर की तरह वो भी उसको प्रिडिक्ट करके बता देगा। तो एक तरह से क्या हो गया, ह्यूमन रिप्लेसमेंट टाइप ऑफ हो गया, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा कंपनीज वगैरह में यूज होता है, क्योंकि सपोज सर है, सर तो एक ही है, ठीक है, लेकिन आपको यही चीज बार बार इम्प्लीमेंट करनी है, तो आपने क्या किया कि सर की जितनी भी नॉलेज है उसको ट्रांसफर करते हैं एक मॉडल में, ठीक है, तो वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने मॉडल बना दे जो सर की तरह बिहेव कर रहा है, वो बता देगा किस स्टूडेंट की जब आप इंफॉर्मेशन डालोगे तो सारी चीजें प्रिडिक्ट करके आपको बता देगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, सबसे पहला एनालिटिक्स आया, फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आता है, डीप लर्निंग आता है। जो मशीन लर्निंग का है वो आपका एक तरह से टेक्निक होता है जो ज्यादातर स्टैटिस्टिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर आपने बेसियन थ्योरम कितने लोगों ने पढ़ा है? बेसियन थ्योरम शायद 10th या 12th में पढ़ते हैं। योगेश आपने पढ़ा है बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी? नहीं सर। पढ़ा है ना, ग्रेट। हाँ, तो बेस थ्योरम भी एक तरह से स्टैटिस्टिकल बेस अप्रोच है जहाँ पे आप जो प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हो, करेक्ट। तो वो मशीन लर्निंग के अंदर वो टेक्निक आता है, वो एक क्लासिफिकेशन टेक्निक है, उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन उसका एक बेस एप्लीकेशन आपने 10th या 12th में पढ़ा होगा कि कुछ डिफरेंट आइटम है, सपोज एक ए मशीन, बी मशीन, सी मशीन है, और वो कुछ सपोज टॉफी जनरेट कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल, और उसमें कुछ डिफेक्ट पीसेज आ रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करके बताओगे एक पर्टिकुलर चॉकलेट आगे की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो जनरेट हुई है वो बी मशीन से हुई है। तो ऐसे करके प्रोबेबिलिटी के थ्रू आप प्रेडिक्ट करते हो। ऐसी एचपीएम है और बहुत सारी टेक्निक है जो आप पढ़ोगे, बहुत एल्गोरिथम है, थाउजेंड्स ऑफ एल्गोरिथम, करेक्ट। तो ये आपका मशीन लर्निंग के अंडर आ गया। फिर डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या होता है? बेसिकली ये आपका एक तरह से मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क होता है। आपने सुना होगा ना प्रेसिपिटॉन के बारे में, सुना है आपने योगेश? न्यूरल यस सर। नेटवर्क के बारे न्यूरल नेटवर्क के बारे में सुना है आपने? नहीं सर। हाँ चलो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल। क्या होता है बेसिकली, एक तो आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड एल्गोरिथम हो गया, एक दूसरा क्या होता है कि जैसे हमारा जो माइंड वर्क करता है ना, हमारा माइंड क्या करता है, अगर मैं आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको थोड़ा सा एक अंदर ही अंदर एक कॉम्बिनेशन चलता है, फिर फाइनली आप डिसीजन ले पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने दो कलर रखूं, काफी दूर है, एक येलो है और एक इससे रिलेटेड ग्रीन है, तो आपको कभी येलो लगेगा कभी ग्रीन लगेगा दूर से, लेकिन आप फाइनली फिर एक थोड़ा और कंसंट्रेट करोगे तो एक डिसीजन ले लोगे, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी होगी नहीं यार ये तो येलो है, ठीक है। ऐसा होता है ना माइंड में, आप कोई चीज सोचते हो, करूँ ना करूँ, फाइनली एक डिसीजन लेते हो। तो
बेसिकली जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस किसी भी पर्टिकुलर डिसीजन को लेने के लिए कि उसकी कितने ज्यादा वैल्यू करेक्ट होगी। मतलब इनिशियली लेवल पे आप सब चीजें बराबर होती है, किसी भी चीज के बारे में आप सोचते हो, लेकिन आप फिर थोड़ा थोड़ा जब थिंक उसके बारे में सोचते हो तो एट द एंड आप एक डिसीजन ले लेते हो, कोई भी आपका लाइफ का काम हो, ठीक है, और वो डिसीजन ज्यादातर सही होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे गलत होते हैं, वैसे डिसीजन नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई बिजनेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपका डेली डेली लाइफ के जो डिसीजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है, उसके कुछ इंजरी हो गया, तो सबसे पहले वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि मेरे को किसको फोन करना चाहिए। तो बच्चा सबसे पहले अपने फादर को फोन करेगा, क्योंकि उसका जो डिसीजन है वो फादर को फोन करेगा कि मेरे को चोट लगा है ऐसे। और फादर किसको करेगा, फादर डॉक्टर को फोन करेगा और वो उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो करेगा। लेकिन वही बच्चा जब आपका 20+ हो गया, वो डायरेक्ट डॉक्टर को फोन करे, डॉक्टर के पास जाएगा और अपना ट्रीटमेंट कराएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। तो यही चीज है न्यूरल नेटवर्क, जो जितना उसका माइंड ट्रेंड हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेता है। आपका क्लियर हुआ इश? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, क्योंकि वो वेट है ज्यादा, वो फादर को देगा, ठीक है। वो अपना जब अगर उसके पास में मैंने 5 चीजें रख दी कि आपके पास में डॉक्टर है, फादर है और आपके फ्रेंड्स है, तो वो जो 10 ईयर का किड्स है वो अपने फादर को ज्यादा वेट देगा, वही चीज फाइनल हो जाएगी। लेकिन वही 20 का है, वो ज्यादा डॉक्टर को वेट देगा, तो फाइनली डॉक्टर को अप्रोच करेगा। तो ये एक आपका पूरा पाइपलाइन हो गया, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट, वेयर AI/ML इज यूज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीजें यूज कहाँ पे होती है। तो अब चैटबॉट के बारे में सुना है आप लोगों ने? कोई भी साइट ओपन करते हो आता है ना चैटबॉट कि मे आई हेल्प यू, आस्क मी द क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट। हेलो Yes, yes, sir. योगेश? Yes, sir. ओके Yes, ओके। sir. एग्रीकल्चर फार्मिंग, ये सब जितने भी फॉरेन कंट्री वहाँ पे यूज हो रहा है, वो पूरा जितना भी उनका वहाँ पे एरिया है, उस सब चीजों को थ्रू द ड्रोन वो कैच करते हैं कि क्या कंडीशन है, कब उनको पानी वाटर सप्लाई होना है या नहीं होना है, और क्या स्टेटस है। पूरा एग्रीकल्चर के थ्रू वो डायरेक्टली वो उस चीज को हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो फार्मिंग छोटे छोटे लेवल पर होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, तो वो उसके थ्रू ही उसको हैंडल करते हैं, ड्रोन के थ्रू, ठीक है। ऑटोनोमस ड्राइविंग, ये सब सभी को पता है। ओके, सेल्फ ड्राइविंग कार, आपको आने वाला फीचर यही है। इवन 2030 उबर और गूगल ने इसको डेडलाइन दिया है कि उबर ने बोला कि 2030 में हमारे कैब में कोई फिजिकली ड्राइवर नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ये आने वाले फीचर है, और ये सब चीजें थ्रू द डेटा साइंस के ही होंगे। ओके, हेल्थ केयर, मेडिकल इमेजेस एनालिसिस, आपको पता है ये सब चीजें कि आपका जो एक्सरे स्कैनिंग और जितना भी सब चीजें हो रहा है आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ जितना भी वर्क हो रहा है, अगर आप कोई भी करो वो थ्रू द डेटा साइंस हो रहा है। और इवन बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि डॉक्टर होता है वो किसी चीज को डायग्नोस करने में सही से कर नहीं पाता, स्पेशली आपने अगर कैगल पे डालना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस आए कि जिसमें जो उनका स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें बहुत इनिशियल स्टेज में डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाता, लेकिन कंप्यूटर विजन के थ्रू वो चीज डायग्नोज हो चुकी है, करेक्ट। तो उसमें ह्यूमन से ज्यादा उसकी एक्यूरेसी है। इवन अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे तो उसमें एक इमेज प्रोसेसिंग का अलग से डिपार्टमेंट भी होता है। रिटेल, शॉपिंग एंड फैशन, इससे ये तो आपका एक रियल एग्जांपल है योगेश। आपको पता है कि जब कोई चीज आप परचेज करते हो तो आपको एक बकेट शो करता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आल्सो परचेज दिस आइटम आल्सो, ऐसा होता है। हाँ योगेश, कैन यू हियर मी नाउ? वेबाव? Yes, sir. ग्रेट, ओके। मतलब ये सब चीजें आपकी रियल लाइफ में होती है ना जो मैं बोल रहा हूँ। Yes, Yes, sir. sir. जब अमेजन पे शॉपिंग करते हो तो 2-3 आइटम और शो करता है ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल परचेज आल्सो दिस आइटम, करेक्ट, Yes, ठीक है। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, ये सब आपको पता है। स्पोर्ट एनालिसिस एंड एक्टिविटीज, आप आईपीएल देखते हो ना, वो सारा कुछ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर देता है ना कि किस कोई भी बैट्समैन है कि उसका स्पिन के खिलाफ कितना रिकॉर्ड है, फास्ट के खिलाफ किस ऑर्डर पे कितना रन बनाए, वो पूरा एक एनालिसिस कर देता है। और उसी के अकॉर्डिंग अब जो टीम है ना, जो कैप्टन है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना खिलाड़ी जो भी प्लेयर है उसको सेट उसका पोजीशन सेट करता है।
correct? Manufacture and production and livestock and inventory management and वेयरिंग हाउस एंड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। आप अगर आपको मैं रियली बताऊं, पहले अगर आप अब से 10 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत जॉब, लेकिन जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, इसने मैकेनिकल इंडस्ट्री का जो जॉब है वो अप्रोक्स 80% कम कर दिया, क्योंकि सारा जो काम है वो थ्रू द डेटा साइंस के थ्रू हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो रहा है। बड़े बड़े रोबोट्स बना दिए, वो सब सेम काम कर रहे हैं। क्लियर? सो दीज आर केस स्टडी। सो केस स्टडी क्या है हमारा, आप मतलब ये मैंने एग्जांपल इसलिए ले कि ये लोग आप यूज करते हो, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल है। ये आपका जो डेटा है, आपने ये वॉच यूज करते हो, कितने लोग यूज करते हैं? वैभव, आप आपने या आपके कोई फ्रेंड ये वॉच यूज करते हैं? यस सर। ओके ग्रेट। तो इसका पता है इसका मेनली वर्क क्या होता है? तो ये आपका पूरा जो बॉडी का हार्ट बीट से पूरा जो एक्टिविटी है वो सब कितने परसेंट आपने एनर्जी कंज्यूम किया, सॉरी लूज किया, वो सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाता है। जैसे आप चलते हो, जो भी एक्टिविटी होती है पूरा इसके अंदर आ जाता है। तो फिर इसके ऊपर एक एनालिसिस होती है। एनालिसिस होने के बाद में आपको ये बताता है कि भाई आपने, अगर आप देखो सिंपल सी लाइफ का फंड है, अगर आप एनर्जी कंज्यूम ज्यादा कर रहे हो और उसको यूज नहीं कर रहे हो तो एट द एंड आपकी बॉडी फैटी हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ये चीज बैलेंस करनी है। और इवन अगर कोई ऑलरेडी ओवर वेट है तो उसको तो अपना जो रेशियो है वो ज्यादा रखना है कंज्यूम करने, सॉरी वेस्ट करने का एनर्जी। तो ये पूरा पूरा जो डेटा है, इससे आपका जो हेल्थ कंट्रोल सिस्टम रहता है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें रहती है। और प्लस अगर आप कोई टेंस हो ना, सपोज आपको कोई भी टेंशन है, तो आपको जो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा और सब ये जो चीजें है ना अप एंड डाउन हो जाएगी। तो आप वहां पे चेक कर पाओ कि हाँ मैं 2 आवर थोड़ा डिस्टर्ब रहा और ये मेरा डेटा आ गया। तो फिर डॉक्टर भी आपको यही बोलेगा कि नहीं, आपको बिल्कुल कूल रहना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये सब चीजें बहुत ज्यादा अप एंड डाउन होने लगी तो आपकी और ज्यादा चीजें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और आपको एडवाइस करेगा कितना आपको कैलोरी बर्न करना है और कितना कंज्यूम करना है, इस तरह से। तो ये पूरा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो डेटा साइंस के थ्रू हैंडल हो रहा है। नेक्स्ट, केस स्टडी टू इमेज रिकॉग्निशन। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार का जो बना है और इवन 2030 का डेडलाइन है। आने वाले टाइम में विद इन 2 to 5 ईयर आप ये सब चीजें अपने आसपास देख भी लोगे। अभी तक आपने सुना होगा या कहीं पे ट्रेनिंग चल रही होगी। तो बेसिकली ये सब चीजें ऑलरेडी, ये मॉडल है, ये ट्रेंड रहेगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये ऑटोमेटिकली सब चीजें डिटेक्ट कर लेगा। ह्यूमन है, कार है, वॉट एवर है, कितना वेट करना है, सब चीजें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। तो एक तरह से जो पूरा, अगर आप पूरा 360 एंगल से अगर आप सोचोगे तो सारी चीजें जो कैप्चर हो रही है थ्रू द डेटा साइंस हो रही है। चाहे वो किसी भी फील्ड में चले जाइए, आप रिटेल में चले जाइएगा, मैकेनिकल से रिलेटेड चले जाइएगा, और आपका ये सिविल हो गया और मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री हो गया, A to Z सब में डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। इवन मेडिकल साइंस में तो बहुत ज्यादा हो चुका है। ओके, तो उसके बाद में अब हम आते हैं कि हमारा, जिसे, क्योंकि एक जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीरियड होता है कि हमको क्या क्या रोल प्ले करने रहते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक रियल फिगर बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरा एक जो वर्क किया है मैं अपना, क्योंकि मेरा मेनली जो एक्सपीरियंस है वो इंडस्ट्री का ही है। तो उसमें बेसिकली ज्यादा 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका डेटा इंजीनियर का। तो डेटा इंजीनियर बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका डेटा है ना, ये डेटा एक्चुअल फॉर्म में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। तो उसको कैसे आपको सर्वर पे मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका स्पेस मैनेज करना कि ओके, डेटा आपको पता है, आपको पता है जैसे आप आईपीएल देखते हो तो आपको एक तरह से लाइव ट्विटर का बिहेवियर दिखाता है, तो उसको लाइव स्ट्रीमिंग बोलते हैं। स्टेटस होता है जो डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में आपको रखना है, कहीं मोंगोडीबी, ये सब चीजें आप पढ़ोगे। और जैसे मैं मोंगोडीबी बोला, सिक्वल बोला, और बहुत सारे डेटाबेस है, तो वो सब चीजें आप पढ़ोगे। उसमें कोई मतलब ऐसा टेंशन नहीं लेना, सब इजी चीजें हैं, इतना नहीं है। लेकिन वो उनको मैनेज करना रहता है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड वो डेटा कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो ये सारा जितना भी काम होता है वो डेटा इंजीनियर का होता है, जिसमें ये जो सिक्वल क्वेरी लैंग्वेज हो गया, जावा, स्केल, पाइथन, ये सब प्रोग्रामिंग यूज होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यूज करते हैं पाइथन और सिक्वल ही करते हैं, ये सब इतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है निकिता? साक्षी, प्लीज गिव मी द रेस्पॉन्स इमीडिएटली। हेलो,
ये पॉइंट क्लियर हो गया डेटा इंजीनियर का? ओके, Yes. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जैसे मैं पूछूं तो रेस्पॉन्स किया करो मेरे को, ठीक है? तो जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट इसमें, तो ये सब थोड़ा डेटा से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें डेटा साइंस का कोई रोल नहीं। और ये जो 3 पार्ट है मैंने यहाँ पे देखा, डेटा एनालिसिस्ट, मशीन लर्निंग हो गया एंड डेटा साइंटिस्ट हो गया, इसके सब पार्ट है। तो इसमें जो डेटा एनालिसिस्ट होता है वो सिंपली आपको क्या करता है, डेटा को एनालिसिस करके रिपोर्ट बनाता है जिसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो कि सब। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि जो पेंडेमिक का आपका रीजन वाइज आपने जो प्लॉट हुए, जो एक रिपोर्ट बनाया वहाँ पे क्या रेशो है, क्या रेट है, पॉजिटिव रेट क्या है, वो सब डेटा एनालिस्ट का काम है, ठीक है? डेटा एनालिस्ट इससे डेटा लेगा और यहाँ पे पूरा एक रिपोर्ट बनाएगा। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा एनालिस्ट यहाँ पे लेगा। फिर आपने मैनेजर ने आपको बोला कि नहीं ये ठीक है, या आपकी किसी मिनिस्टर ने बोला कि ये ठीक है, लेकिन हमको आगे की भी प्रिपरेशन करनी है। तो उस प्रिपरेशन करने के लिए फिर यहाँ पे एक मशीन लर्निंग का एक साइंटिस्ट आया, ठीक है? जो मशीन लर्निंग साइंटिस्ट आया वो इससे जो डेटा लेगा उसको यहाँ पे वो प्रिडिक्ट करेगा, वो सब चीजें बताएगा। फिर यहाँ पे उसने जो प्रिडिक्ट करके बता दिया, फिर एक डेटा साइंटिस्ट आया। डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, डेटा साइंटिस्ट को सबसे पहली बात बता दूं, इसकी भी नॉलेज होती है और इसकी भी नॉलेज होती है, ठीक है? तो डेटा साइंटिस्ट क्या करेगा, वो पूरा इंफॉर्मेशन गेन करेगा, वो मॉडल भी चेक करेगा। वो ये जो मशीन लर्निंग इंजीनियर है, सपोज उसने 5 मॉडल यूज करे, वो सबसे पहले फिर वो एक पूरा एक पाइपलाइन बनाएगा डेटा साइंस कि हाँ कौन सा मॉडल सही है, और पूरा एक फाइनली जनरेट करके बताएगा। वो इसके भी इनपुट लेगा, इसके भी इनपुट लेगा, और अपने दोनों के इनपुट लेके फाइनली मॉडल बताएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो पाइथन होता है। इवन अगर आप मार्केट में जैसे सिंपली आपको R&D करो तो डेटा साइंटिस्ट के प्लस पाइथन डालो, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज बताता हूँ, गूगल ओपन करना, ठीक है? और जब गूगल आप ओपन करोगे तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें गूगल ओपन करने के बाद में आपको डेटा साइंस और पाइथन डालना है, डेटा साइंस स्केलर डालना है, अलग अलग। पहली बार डेटा साइंस और पाइथन डालना है, तो उसमें देखने कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ रहे हैं, नीचे सर्चेस आएंगे, फिर सेम आर, फिर वो, तो आपको पता चल जाएगा किसका ज्यादा स्कोप है। तो 90% जो जॉब है उसमें पाइथन के ही डिमांड है। तो ये एक आपका एक जो बोलते हैं ना स्किल सेट हो गया कि कैसे आपको अपना स्किल सेट बनाना है। कीप इन माइंड डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो मशीन लर्निंग इंजीनियर भी होता है और डेटा एनालिस्ट भी होता है, करेक्ट? नेक्स्ट, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आसिम, आर यू देयर? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? प्लीज गिव मी द रेस्पॉन्स। Sir. So please share that form with the students who take the feedback. Okay, sir. I will share it. And dear student, please fill up this form, whatever they are asking, and please submit immediately. So you have the 60 seconds. Hey, share form. एक मिनट सर, मैं सेंड कर दूँ। ठीक है, इतना सेंड करते तो मैं बात करता हूँ। कुलदीप, आर यू देयर? कुलदीप, पूजा, मेरे को सुन पा रहे हो आप? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या जॉब करने, तो आप कौन सा रोल चूज करोगे? मैं Data analyst, sir. ओके, और पूजा? पूजा, मेरे को सुन पा रहे हो आप? वैभव, वैभव सुन पा रहे हो मेरे Yes, को? sir. आप Yes, sir. बिल्कुल यंग हो, आपका रेस्पॉन्स ऐसा आना चाहिए जैसे मैं वर्ड फिनिश करूँ फौरन एकदम रेस्पॉन्ड आना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. अभी तो कौन सी जनरेशन चल रही है? 7th जनरेशन चल गई है ना, 7th या 10th जनरेशन आ गया ना कंप्यूटर का, ठीक है? तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है, ठीक है? तो आप कौन सा रोल? गूगल फॉर्म। अच्छा, हाँ भैया, ये प्लीज ये फॉर्म है, मैं आपसे बात करता रहूंगा और ये फॉर्म आप जल्दी से फिलअप करिएगा। सर्टिफिकेशन।
तो ये बेसिकली जो फॉर्म है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम लोगों का जो इंफॉर्मेशन है और आगे जितना भी हम लोग वर्कशॉप कराएंगे और स्पेशली फॉर द सर्टिफिकेशन जो ईडी गुरु है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप और ये आपका रिज्यूम में आप मेंशन करना और उससे ये रहेगा कि हाँ आप कितने एक्टिव है। देखो दो चीजें होती है, एक आप नॉर्मल पढ़ाई करते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीचर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा रहता है कि आपकी एक्टिविटी, क्योंकि जब आप अगर अपना रिज्यूम लिखते हो ना तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है, तो वो एक अलग से एक पॉइंट रहता है और जितना भी एचआर है उस चीज को देखता है क्योंकि पढ़ते तो सभी है लेकिन एक्स्ट्रा अपना एफर्ट क्या लगा कि आप कितने एक्टिव हो। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने हाँ अपने वर्कशॉप अटेंड किया। आपको वर्कशॉप अटेंड करने से क्या रहता है, आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिल जाते हैं और जब आप कहीं पे अपने फ्रेंड्स के अंदर कोई डिस्कशन करोगे तो आप उनके साथ में एटलीस्ट बात कर सकते हो, हाँ ड्यूअल नेटवर्क स्विच होता है, सेल्फ ड्राइविंग कार मार्केट में आ गया और ये सब चीजें, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। जो ईडी को है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा ईमेल आईडी पे। तो प्लीज फिल अप दिस फॉर्म और जितने भी फीचर के हमारे वर्कशॉप रहेंगे और जितने भी ट्रेनिंग और जितने भी प्रोग्राम्स हम रहेंगे कि हम लोग बहुत सारे जो चीजें हैं जो इवन एआई से रिलेटेड जो ट्रेंड है क्या चल रहा है जो लेटेस्ट न्यूज वो सब अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि एग्जाम सॉरी जो कंपनीज हैं जो वो सब चीजें आपसे पूछता है वो ये नहीं एक्सपेक्ट करेगा आपसे कि आप उसको प्रूव करके बताओ, वो सिर्फ नाम पूछेगा जो आपको पता होना चाहिए। Yes, sir, we can Will proceed. We can proceed. shall I start now? Yeah, yes. Okay, now. So अब मैं आपसे पूछूंगा कि कैन आई बी द डेटा साइंटिस्ट आफ्टर दैट डिप्लोमा। तो आपको आपसे पहले कुछ ऐसा फील हुआ था कि आप डेटा साइंटिस्ट बन सको, मतलब ऐसा कुछ थॉट आया आपके माइंड में ड्यूरिंग डिप्लोमा? हेलो हेलो योगेश, आप सुन पा रहे हो? यस सर। योगेश हाँ हाँ, तो आपको लगता है कि आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आफ्टर डिप्लोमा? सर मुझे डेटा साइंस में इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो अच्छा आइडिया। अच्छा अच्छा, चलो दूसरे से जयश्री, निकिता, आप मतलब एज ए सपोज ना हो लेकिन एक थॉट होता है ना कि हाँ मैं बन सकता हूँ या नहीं। साक्षी, हेलो, एनीवे सो सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सपोज आपका जो डिग्री डेटा साइंस है वो कंप्लीट हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपकी दो चीजें हैं। आपका जो करंट आपका जो कोर्स है उसमें आपका जो मार्क्स परसेंटाइल है वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कंपनीज में आप जाते हो डजंट मैटर कि आप डेटा साइंस के लिए जाओ, किसी भी आप इंटरव्यू जॉब के लिए जा रहे हो सबसे पहले वो आपका ग्रेड चेक करेगा। क्योंकि ग्रेड इसलिए चेक करेगा, हमारे पास में आज की डेट में मेरा जितना बात हुआ आसिम से उसने बोला था कि 500 प्लस हमारे पास में एप्लीकेशन आए ट्रेनिंग के। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम हर 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 स्टूडेंट का इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो हमने एक क्राइटेरिया फिक्स किया कि जिसका अभी 70 प्लस मार्क्स होगा सबसे पहले हम लोग उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। करेक्ट? तो सेम जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो सबसे पहले अगर आप अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सेंड करोगे, क्योंकि आजकल जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, तो वो आपका फर्स्ट जो क्राइटेरिया होगा वो उन्हीं लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा जिनका जो मार्क्स होगा वो ज्यादा होगा। तो मेरा आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप जितना भी जो आपका करंट जो कोर्स है जिसमें आप इन्वॉल्व हो तो उसको बहुत अच्छे से स्टडी करके अपना जो परसेंट जो भी आपका ग्रेड है उसको बहुत ज्यादा मतलब बढ़ाना है। मे बी 80 प्लस, जिसका 80 तो वो 90, जस्ट लाइक दैट। और दूसरा सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप मैंने पीएचडी किया है, मेरे साथ में जो डिप्लोमा करने वाला लड़का है वो भी जॉब करता है और जिसने बीटेक किया वो भी करता है। करेक्ट? या उसने ग्रेजुएशन करने के बाद में कोई कोर्स किया। जो कंपनीज में है मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका स्किल सेट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आपका स्किल सेट पहला आपका जिस कोर्स से आप आ रहे हो आपका कितना आपका जो परसेंटाइल है बैकग्राउंड क्या है प्लस आपका स्किल सेट। अगर आप कल बीटेक या एमटेक कर लोगे फिर भी आपको स्टार्टिंग में से करनी पड़ेगी जो आज करोगे आप। सपोज आपने कोई कोर्स किया, कोई ट्रेनिंग करी, आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। आप कंपनी के अगर फॉरेन में चले जाओगे यूएस में, अगर आप कंपनी के सीईओ भी हो ना तब भी आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो आज ज्वाइन करने वाला स्टूडेंट हो चाहे वो कंपनी का सीईओ।
तो काम करने का जो लेवल है वो एक जैसा है सब लोगों का। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। तो इसमें कोई ये मैटर नहीं करेगा कि आप कोई बीटेक हो या डिप्लोमा हो, करेक्ट। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपना जो करंट कोर्स जिसमें इन्वॉल्व है उसमें आपका परसेंटाइल होना प्लस आपका स्किल सेट। ठीक है। अब आते हैं कि मैं क्यों डेटा साइंटिस्ट बोला वैभव आपको, योगेश, सॉरी मैं भूल गया था। तो इस क्योंकि ये मैं हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसका ज्यादा जॉब है, इसका ज्यादा डिमांड भी है और ज्यादा पैसा भी है। तो इन इन एवरेज अगर आप गूगल जाओगे, ग्लास डोर करोगे, तो जो एवरेज जो सैलरी है 1100 के, यानी कि 11 लाख की जो पैकेज है वो एक एवरेज सैलरी है। अगर आप सपोज आपने 15,000 या 20,000 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करके उनसे जो जॉब के बारे में आपने पूछा, तो वो वहां पे उसको बताएगा कि जो एवरेज सैलरी है वो कितना है। 11 लाख का पैकेज ऑफ द डेटा साइंटिस्ट में रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। सो उसमें डेटा एनालिस्ट भी है, वो भी है, ठीक है। तो ये एक आपका, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए उसका आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा स्कोप है। इवन करंट डेट में बहुत ज्यादा स्कोप है। 90,000 प्लस जॉब ऐसी जो अभी भी फिलअप नहीं हुई है इंडिया के अंदर। वो क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेन नहीं मिले। क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो सपोज एमटेक करके आया, लेकिन उसका जो स्किल लेवल है वो नहीं होता, उसका नॉलेज ऊपर ऊपर का सब चीजों का होता है। मैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है एक प्रोजेक्ट डिलीवर करने की, जो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा जब आपका स्किल सेट स्ट्रॉन्ग होगा, आपके पास में सर्टिफिकेशन है, आपके पास में एक प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, वो सब चीजें होगा। तो इसके अंदर अगर आपने एक अच्छा सा अपना आपको 3 महीने सीरियस होकर वर्क कर लिया, तो आपको एक बहुत ज्यादा आपके पास में अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बहुत अच्छी जॉब के लिए। और सेकंड क्या है कि जो जॉब है ना, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें जो मार्केट है वो ओपन रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सपोज अगर आप सुनो तो लाइक पीएचपी हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वेब डिजाइनिंग हो गई, वो एक लिमिटेड स्कोप है, उसका कुछ इतना ज्यादा वो नहीं है। लेकिन अगर आपको पूरा वर्ल्ड वाइड देखना है, तो सबसे ज्यादा जितने भी ऑन शो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सबसे ज्यादा डेटा साइंस में मिलती है। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन टेक दिस एडवांटेज। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, मैं सबसे पहले मैं आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो अपना स्किल सेट है वो इम्पोर्टेंट है, प्लस उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका अपना करंट जिस कोर्स में एंगेज हो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करना। और ये चीजें जो मैं स्लाइड आपको शो कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि ऑल अबाउट द स्किल नाउ, गूगल, आईबीएम, एप्पल, ये आने वाले टाइम में आपका डिग्री देखेगा नहीं। मैंने पीएचडी किया है, आज तक मेरे किसी ने डिग्री नहीं देखा, सिर्फ इंटरव्यू हुआ है तो मेरा स्किल सेट के ऊपर हुआ है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने एमटेक किया है, क्योंकि उसको एट टाइम आपसे काम कराना है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपनीज क्या है, आपका सिर्फ करंट जो पास आउट हुआ है उसका परसेंटाइल देखती है, फिर वो ये उनको एनालिसिस करके ये बता देती है कि हाँ ये स्टूडेंट है, अगर हम इसको ट्रेनिंग देंगे तो एटलीस्ट ये सीख लेगा चीजों को। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री अगर आप एमटेक या बीटेक अगर आप ये सोच रहे हो कि उसको ज्यादा जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने सपोज आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया, आपने क्या किया, आपने अपना जो जो एक्चुअली जो डेटा साइंस में जो चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहती हैं वो आपका जो कोर्स इनके सर्टिफिकेशन होते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, समझे। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने सिर्फ 12th के बाद ग्रेजुएशन किया था। उसने ग्रेजुएशन के बाद में एक पैरेलली कोर्स ज्वाइन किया जो विप्रो कराता है, एक अपने जो ग्रेजुएशन के बाद में ज्वाइन करते हैं। उसने सारे जो भी डेटा साइंस के जो सर्टिफिकेट थे वो जैसे सपोज डीप लर्निंग, एआई, सैस का कर लिया, वो पूरा करने के बाद में उसको माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिला। वो सिर्फ ग्रेजुएट था, ठीक है। और इवन उसने जो जो विप्रो का कोर्स में जो इन्वॉल्वमेंट था, विप्रो ने कंडीशन रखी थी कि आपको हमारा कोर्स कंप्लीट करना है तभी हम आपको उसका सर्टिफिकेट देंगे। उसने कंपनी से बोला, कंपनी ने बोला माइक्रोसॉफ्ट नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें आपका नॉलेज है, आप अच्छे से कर सकते हो, आ जाइए। उसको 50 लाख का पैकेज उसको दिया। मतलब जब वो जॉब कर रहा था उसका जो पैकेज था वो मुश्किल से 5 या 6 लाख का था। कंपनी ने उसको क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसने सारे सर्टिफिकेट क्लियर किया, ड्यूरिंग द टाइम उसको उसने 20 प्लस ऑफर किया, लेकिन उसको वहां पे 250 का मिला। तो देर इज नो लिमिट टू अर्न द मनी, बट आपको अपना स्किल सेट इंपॉर्टेंट करना है।
आपने इलन मस्क का नाम सुना है? कितने लोग इलन मस्क को जानते हैं? योगेश, जानते हो आप? यस सर। जानते हो इलन मस्क का? कभी फॉलो करते हो आप उसको? आप ट्रिप उसको फॉलो करना। वो क्या बोलता है? यस सर। वो दुनिया का सबसे रिच पर्सन है, जिसने टेस्ला और जितने भी ये सब रॉकेट स्पेस में भेजना, ये सब जो बहुत ही डीप लर्निंग एआई जिसने इन्वेंट किया पूरा, मतलब उसका जो हेड है। तो दुनिया का सबसे मतलब आज की डेट में इनोवेटिव पर्सन है वो। अपने वो सिंपल एक इंजीनियर था, इंजीनियर से उस दुनिया का सबसे रिच आदमी बन गया और यंग है अभी। उसने उसका अपना यही स्टेटमेंट है कि किसी भी काम करने के लिए आपका डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, आपका स्किल इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डिग्री जस्ट एक एंट्री पॉइंट है, जैसे आप डिप्लोमा हो या कोई इंजीनियर उससे ऊपर है, जस्ट एक वो है। लेकिन आपका जो माइंड है ना, वो कैसे ट्रेंड होगा जब आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। क्लियर? ओके। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि व्हाई द स्किल आर द इम्पोर्टेंट? द गुड न्यूज इज दैट यू कैन ऑब्टेन द टेक्निकल स्किल, नॉट जस्ट द फॉर्मल एजुकेशन। देखो, एक होता है कि किसी किसी चीज का एक थ्रेशोल्ड, योगेश, ठीक है? थ्रेशोल्ड मीन्स यानी कि आप हो एक एक आदमी को आपने सपोज करो पानी पिलाना है, तो आप सबसे पहले गिलास में पिलाओगे ना, करेक्ट? हेलो Yes, sir. योगेश? हाँ। तो एक बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ, एक छोटा सा एक ग्लास लोगे, उसको दोगे, अब उसको कितना पानी पीना है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर? लेकिन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, एक एक स्पेसिफिक किसी भी चीज में एंट्री पॉइंट करने के लिए। सपोज मैंने सपोज डिप्लोमा किया है, दैट इज द सफिशिएंट बेसिकली एजुकेशन फॉर मी टू एंटर एनीवेयर। और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि मेरे पास में सबसे ज्यादा टाइम है अपना स्किल ग्रो करने का। क्योंकि जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं उनका एज ज्यादा होता है, आपका एज कम है और आपके पास में टाइम ज्यादा है स्किल ग्रो करने का, सर्टिफिकेशन का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट के अपने सर्टिफिकेट है, आप वो कर लीजिएगा। आईबीएम में करना चाहते हो, आईबीएम के अलग है, गूगल के अलग है। तो आपको आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ वे है, आप चूज कर सकते हो। और किसी में भी एक मतलब गूगल में अगर जॉब करोगे तो आपको आपको नहीं, आपके आसपास के जो लोग बताएंगे कि ये बंदा गूगल में जॉब करता है। और उस करने के लिए आपके पास में फिलहाल टाइम है, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि आपको सिर्फ जो मैं ये बता रहा हूं, मैंने ये लाइन पढ़ी है, वो मैंने पढ़ी कि आप सेल्फ लर्निंग और प्लस उसके सर्टिफिकेशन के थ्रू अपना आपको आप स्किल गेन कर सकते हो, करेक्ट? उसके लिए अगर आपने पीएचडी भी किया है, मैंने पीएचडी करके मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट किए, क्योंकि मेरा पीएचडी डिग्री एक एंट्री पॉइंट था जस्ट। लेकिन जब कंपनी में जब मैं जॉब करता हूँ तो मेरे पास में वो मेरे से सर्टिफिकेशन पूछते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे आप डिप्लोमा हो या पीएचडी हो, आप काम वही करना है, करेक्ट? And once you have gained the expertise, you can list down this technical skill your CV and indicator principle. सिंपल सी बात है। कंपनीज हैं, वो कंपनी सब लोगों के सीवी को शॉर्टलिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ सीवी का जो आपका जो टेक्निकल एरिया है ना, सबसे पहली बात मैं बता दूं, सीवी दो दो पेज से ज्यादा होना नहीं चाहिए। और उसमें सिर्फ आपका टेक्निकल प्रिपरेंसी चेक करती है और आपका कितना आपके पास में सर्टिफिकेशन है, वो आपका डिग्री भी चेक नहीं करती है। मैं खुद बता रहा हूँ, मोर देन 100 लोगों के मैं इंटरव्यू अपने लाइफ में ज्यादा ले चुका हूँ। मैं प्लेसमेंट सेल में भी था कंपनी में, मैं बहुत सारे प्लेसमेंट भी किए, बहुत सारे कॉलेजेस में गया। तो मैं कभी रिज्यूम में सिर्फ सिर्फ जो मैं चेक करता हूँ वो उसका सिर्फ टेक्निकल प्रोफिशिएंसी चेक करता हूँ। वो तो मैं, क्योंकि आप लोग तो फ्रेशर हो, आपका तो कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ आपकी एक्टिविटी चेक करेंगे कि हाँ बच्चा कितना एक्टिव है। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस वाले की बात करूँ तो सिर्फ उसका उसने कितने सर्टिफिकेशन उसके पास में, वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपको, करेक्ट? सो अब आप तो सबसे पहले लगेगा कि ठीक है, अगर हमने डेटा साइंटिस्ट बन भी गए या कुछ भी हो तो हमारा फ्यूचर में स्कोप क्या है। तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया था कि सिर्फ एक वर्ल्ड में एक एक इंडस्ट्री आज की डेट में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसमें जॉब की और रिक्वायरमेंट है, जो फुलफिल नहीं हो रही, वो डेटा साइंस। अदरवाइज आप रियल एस्टेट में किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइएगा तो वहां पे तो जॉब है ही नहीं, ठीक है नहीं? और कंप्यूटर साइंस के अंदर भी और भी फील्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज की डेट में वर्ल्ड वाइड जो डिमांड है सबसे ज्यादा डेटा साइंटिस्ट की है। टुडे डेटा साइंस इज अमंग द टॉप जॉब एज वेल एज द टॉप पेइंग इंडस्ट्री राइट नाउ इन द वर्ल्ड। आपको अगर आप किसी भी कंपनी का उठा के देख लो, जो सबसे ज्यादा स्किल होगा, आपका सपोज करो 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, और किसी और सपोज आप डेटा साइंटिस्ट हो, कोई और दूसरा स्टूडेंट है उसका कुछ और स्किल है। अगर आप आफ्टर 1 ईयर मिलोगे, सबसे पहले आपको अपना स्किल ग्रो करना है, ठीक है?
आफ्टर 1 ईयर मिलोगे आप, अगर एक दूसरे से अच्छे फ्रेंड और उनके बारे में पैकेज पूछोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है डेटा साइंटिस्ट का जो पैकेजेस है, और कितनी ज्यादा उसके पास में अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और डेटा साइंटिस्ट सेक्टर विटनेस द नेक्स्ट हाइक 650% सिंस 2000। अब ये देख कितना ज्यादा किसी इंडस्ट्री में आपने हाइक देखा है। 650% हाइक है, यानी कि जिसका जो सैलरी था, सपोज करो 1 था, उसका जो आज के डेट में सैलरी कितना होगा 650। अगर आप अदर इंडस्ट्रीज को कंपेयर करोगे तो हार्डली हार्डली बता रहा हूँ मैं 20 या 80% तक हाइक हुआ होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्लास डोर नेटिव एवरेज सैलरी। ये आप नंबर देख रहे हो कितना है, वेब इसको कैल कर सकते हो आप अभी। 62,000 को आप 80 से मल्टीप्लाई करके कितना नंबर आएगा वैभव? योगेश, योगेश, यस सर। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप? कोई भी मल्टीप्लाई करके नंबर बताएगा मेरे को कितना है? इसको 80 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से बताओ मेरे को, ठीक है। मैं जब तक नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो रहा हूँ, ठीक है। और ये पे स्केल का डेटा है, मैं कोई जितना मैंने आपको नंबर फिगर दिया है वो सारा थ्रू द सोर्स दिया है, यू कैन चेक वो थ्रू दैट, ठीक है। ये 19%, सॉरी 19 एलपीए है जो इंडिया में डेटा साइंटिस्ट को सैलरी है। इसका नंबर मेरे को बताना, ठीक है। मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ, ठीक? इसको हम लोगों का जो बेसिकली एडी ग्रुप का जो हमारा जो वर्कशॉप का जो प्लान है, उसमें क्या है कि हम लोग वर्कशॉप कराते हैं, ठीक है। उस वर्कशॉप में हम लोग पाइथन, हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं पाइथन कराते हैं हम, उसमें पाइथन प्रोग्राम का बेसिक और एडवांस दोनों कराते हैं। प्लस हमारा जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि जो डेटा क्लींजिंग, डेटा प्रिपरेशन प्लस डेटा विजुअलाइजेशन, जो एक एनालिटिक्स का जॉब है, तो यहाँ तक अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप पूरा डेटा विजुअलाइजेशन, अच्छे से एक डैशबोर्ड बनाना, सब चीजें करना, इनसाइट आइडेंटिफाई करना, तो अगर आप थी में ये 2 चीजें कर ली प्लस एनालिटिक्स, तो ये 3 चीजें करके वो एक एनालिसिस्ट बन जाता है, ठीक है। ये एक एक हमारा एक पैकेज है, करेक्ट। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज हियर, तो फिर हम लोग यहाँ पे अलग से केस स्टडी कराते हैं। और केस स्टडी क्या होता है कि उन लोगों को ये चेक करते हैं कि हाँ उनका माइंड कैसा है। देखो किसी चीज को डेटा साइंस में करने के लिए आपका माइंड ट्रेन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप रियल इन्वायरमेंट में आपका सिर्फ सब कुछ पढ़ाई से नहीं चलता है, आपका माइंड किस तरह से ट्रेंड होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर मैं हम आपसे कुछ कोई चीज हम आपके सामने प्लॉट शो करेंगे तो हम पूछेंगे कि आप इसका इनसाइड बताइए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, क्या दिख रही है आपको। तो वो आपको हम जज करना है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डेटा लेंगे, फिर आपको करेंगे। बेसिकली हमारा मेन वर्क है कि आपका माइंड को ट्रेंड करना, कि जिससे आप किसी भी, अगर मैं आपको कोई प्लॉट दिखा दूं, प्लॉट इन द सेंस कि कुछ प्लॉट होते हैं ना, ग्राफ जिसको बोलते हैं, ग्राफ में दिखा दो तो आप फौरन बता दो कि सर इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ग्राफ का मीनिंग ये है। तो क्योंकि आप ऑलरेडी सारी चीज आइडेंटिफाई कर चुके हो, लेकिन एट द एंड आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। प्लस आपका डेटा मैनिपुलेशन, स्टैटिक्स, सॉल्विंग द रियल टाइम केस स्टडीज। तो जितना भी हमारा जो वर्कशॉप के अंडर रहेगा हमारा, प्लस इसमें डेटा साइंस का पार्ट रहेगा, एआई रहेगा, एमएल रहेगा, और नहीं भी स्टैटिकल एल्गोरिथम यूजिंग द एमएल एंड डीप लर्निंग, वो पूरा कैसे आप लोग फोरकास्ट करते हो, वो सब चीजें हम इसमें कवर अप करेंगे वर्कशॉप में। और अप्रोक्स ये 2 days का वर्कशॉप होगा। मे बी आई एम लिटिल कंफ्यूज अबाउट द टाइम, मे बी लाइक 8 hour to 10 hour। और जो हम लोग नेक्स्ट वीक शुरू करने वाले हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट पूरा इंडिया को हम लोगों ने कवर अप किया हुआ है। और स्पेशली अभी हमारा जो टारगेट है वो आपका महाराष्ट्र है। और सो एक मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास में जितने भी जॉब्स आते हैं और प्लस जितने भी न्यूली आइडियाज, चाहे वो एलन मास्क हो या बिल गेट्स हो, हम लोग उनको ट्विटर उस पर फॉलो करते हैं। और जितने भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सब हमने एक चैनल बनाया हुआ है जो अपने स्टूडेंट्स को
फिलअप कर दें, और प्लस हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रेजेंस का प्रोवाइड करेंगे। वो सब चीज़ें हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ये फिलअप कर दीजिएगा। और ये एक हमारा वर्कशॉप का डिटेल है, जिसमें आप लोग अगर जो भी इंटरेस्टेड हो तो वी कैन ज्वाइन इमीडिएटली। नेक्स्ट वीक हम लोगों का प्लान है। सो ये हमारा एक इंफॉर्मेशन है। इसके बाद में आपको कुछ लाइव डेमो दूंगा लाइव के, जो आपको थोड़ा आइडिया होगा। ये देख आप प्लीज टेक द screenshot of this information. So if anyone interested, so they can directly contact us. Correct? Before आप proceeding further, I would like to request all the students, please kindly fill the form. Okay, otherwise you will not get those who have filled the form. They only get the participant certificates. Please fill the form. excuse me, can you see my screen now? Black window. Yes, sir. Yes. सो बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम था एक बनाया था एप्लीकेशन, ये फेस सिंक्रोनाइजेशन का था, जिसको बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट मिला। और अभी आप देखोगे तो उसमें क्या है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन ने जो मास्क लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है, थ्रू दैट। तो मैं आपको एक लाइव आपको डेमो दे रहा हूँ उसमें, जो मेरे सिस्टम में अपलोडेड है प्रोग्राम जो हम लोगों ने बनाया था। जस्ट गिव मी द फ्री टाइम, बिकॉज यू नो ना कि कंप्यूटर विजन के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है, तो मैं नॉर्मल सिस्टम ही यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज वी यूज द जीपीयू फॉर दैट पार्ट। तो ये बहुत ही आज के टाइम में डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। जस्ट जस्ट गिव मी द मिनट। जो डेटा है वो स्ट्रीम हो रहा है। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? कैन यू सी माई फेस? Yes, sir. Yes. Yes, क्या sir. लिखा रहा है? No mask. No mask. नाउ Mask. okay, if we have the in window more than one person, so it also detect for that. Sorry. सो बेसिकली ये एक पावर है जो डेटा साइंस की है, जो आपके कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये सब चीजें कहाँ पे यूज कर रही होती है हम लोगों को, जितना भी आपका कंपनी है या रोड है, तो वहां पे हम बना सकते हैं। तो एक आपने ये एप्लीकेशन बना दिया एज ए डेटा एनालिसिस्ट। डेटा एनालिसिस्ट क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि पर डे कितने लोग जो है वो मास्क लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। तो उसने बोला कि यहाँ पे 1000 पर्सन डेली पास हो रहे हैं, और उनमें से 80% लोग मास्क लगा रहे हैं, और उनमें से मेल फीमेल का क्या रेशो है। तो आप उस पर्टिकुलर जोन में जाएंगे, और वहां पे जाके आप अगर लोग कम मास्क लगा रहे हैं तो आप थोड़ा सिक्योरिटी टाइट करेंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, और ये बहुत ज्यादा मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है नाउ डेज। सो मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं नेक्स्ट डेमो पे जाता हूँ। राइट, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट है, Sorry. हेलो, मेरा स्क्रीन पर रहे हो? योगेश, क्या दिख रहा है आपको अभी स्क्रीन पे? योगेश, Stock कैन यू? price का सर कुछ. ग्रेट ग्रेट, ये तो अभी आप क्या है कि आप ये देख रहे हैं, ये सब ये आपका प्राइस है, ये कंपनी है एपीएल, ठीक है। जो आपका ये इसने हम लोग ने एनालिसिस शुरू किया था 2000, जो हमारे पास डेटा था वो टिल 2016 तक था। तो आप यहाँ पे इस प्लॉट को देख के बता सकते हो कि सबसे ज्यादा प्राइस कब हुआ, कौन सी ईयर में हुआ? यहाँ पे दिख रहा है आपका 2015 में, करेक्ट? हम्म, Yes sir. हेलो। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पीक होता है तब भी ज्यादा रिस्क रहता है। ये वाली सिचुएशन एक ग्रोइंग सिचुएशन है, तो आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो इस कंपनी में। जब आप बहुत ज्यादा पीक पे चले गए तो फिर पता है ना, डाउनफॉल शुरू होता है। और ठीक है, और प्लस आपने देखा, आपने कंपेयर किया कि आपके पास में दो कंपनी है, तो आपने देखा कौन सा ज्यादा ग्रो किया। तो इसमें ज्यादा ज्यादा जो स्टॉक प्राइस है जो ग्रो कर रहा है वो किसका कर रहा है? हम्म,
IBM दिख रहा है ना, दो कलर दिख रहे हैं ना आपको, IBM और APL, करेक्ट। ये वाला कलर कौन सा है? IBM का। तो ये नंबर, ये नीचे का जो एक्स एक्सिस है वो दोनों का सेम है, लेकिन वाई है जो IBM का ज्यादा है ना योगेश, दिख पा रहा है यस आपको? सर। क्लियर और यस सर। प्लॉट देख के आप बता सकते हो ना एज एनालिसिस, कि अगर आपको यस। ज्यादा मार्केट वैल्यू ज्यादा है, जो ग्रो कर रहा है वो किसका है ज्यादा? IBM का है, करेक्ट। यस सर। ठीक है, ऐसे ही मैंने थर्ड ऐड किया है। तो ये एक एप्लीकेशन रहते हैं जो लाइव एप्लीकेशन रहते हैं, जिससे आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये प्लॉट क्लियर हो गया आपका, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू IBM की है, करेक्ट। और ये लाइव चलता है स्ट्रीमिंग पे, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ठीक है। और हम लोग है जो समर इंटर्नशिप के बारे में, जो समर इंटर्नशिप है वो हमारा मे बी नेक्स्ट वीक या कपल ऑफ वीक में वो हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है। मैं लास्ट ईयर भी किया था और इस बार भी कर रहे हैं, ठीक है। जो 1 मंथ का है और 3 मंथ का है, तो एनी वन हु इज इंटरेस्टेड सो ही कैन कॉन्टेक्ट टू द ID करो। और वो व्हाट्सएप या कुछ भी मतलब मैसेज के थ्रू कर सकता है, जिसमें हम लोग आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। और जो कंपनी का जो कमिटमेंट ये है कि 3 मंथ या 6 मंथ, जब तक आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप कंपनी के साथ में इंगेज हो सकते हो और अपना काम वहां पे कर सकते हो, जो भी है। लेकिन आपको कमिटमेंट रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट हम लोग कराएंगे वो लाइव कराएंगे, प्लस उसमें जो भी आपका प्लस सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, 3 मंथ का एंट्रेंस सर्टिफिकेट। अगर उसके बाद में आपको जॉब नहीं मिल रहा है, उसमें आपको 100% जॉब असिस्टेंट कराएंगे, प्लस अगर 6 मंथ या मे बी जितना भी टाइम आपको सपोज जॉब अपनी आइडियल जॉब आइडेंटिफाई करने के लिए लग रहा है, तो वो आपका फ्री टाइम नहीं रहेगा, गैप नहीं रखेगा, कंपनी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट टू द ED ग्रुप। सो ये भी रन हो रहा है एक्चुअली, आई थिंक लेट्स चेक हियर, lazy morning, I think 1 day। इसको मैं अभी शट डाउन करता हूँ, क्योंकि सॉरी बहुत सारे मैंने एप्लीकेशन ओपन किए हैं। ठीक है, कैन आई जस्ट लेट मी चेक हिज रनिंग, ओह या ग्रेट, ओके। सो यहाँ पे यूनिटली फंड परफॉर्मेंस है यहाँ पे। सो ये कि आपका मल्टी इन्वेस्टमेंट फंड है, तो ये आप चेक कर रहे हो, ये अमाउंट है आपका, और ये आपका 2 मंथ्स का डेटा है, ये जनवरी और फरवरी का। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है, ये एक बेसिकली मैं प्लॉट्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, कैसे हम लोग रियल टाइम में एनालिसिस करते हैं। ये सब चीजें हमने पाइथन के थ्रू बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत तेजी से यहाँ पे जो डेटा है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका अप एंड डाउन जो भी बिहेवियर है, तो अगर आपको अलग अलग उसमें इन्वेस्ट करना है, जैसे पेंशन फंड है, तो पेंशन फंड में आप देख रहे हो कि कैसे इसका बिहेवियर है, सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट, ओके। ये बेसिकली हम लोग ये सब चीजें बनाते हैं जो अलग अलग कंपनीज है उसको स्टेक होल्डर को सेल भी कर सकते हैं। और कहीं भी किसी भी कंपनी में अगर आप लाइव डेमो दे दोगे ड्यूरिंग द जॉब, सो डेफिनेटली यू कैन हायर, बिकॉज इट इज ए लाइव डेमो और इसमें पूरा एनालिसिस पूरा डेटा साइंस यूज किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। प्लस ग्लोबली इंक्लूसिव फंड। तो यहाँ पे कैसे इसका ट्रेंड, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, तो आप किस में इन्वेस्ट करोगे? देख रहे हैं इसका ट्रेंड कैसे बढ़ रहा है, ये जा रहा है ऊपर, कोई वैल्यू है इधर, ये टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग ये काफी तेजी से फ्लक्चुएशन हो रहा है। अगर आप ये दूसरे वाला चेक करोगे, तो ये देखो ये टाइम किस कैसे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। अगर किसी ने इन्वेस्ट किया था इतने का, आज की डेट में उसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5084K, और किया था कितना 596 का, तो यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। तो जस्ट लाइक दैट, ओके। So anyway, my friend, come back to the session. Okay. So
Any comments? Yogesh, Vaibhav, Jayashri, Nikita, please say yes, yes, yes. Shakshi, Kuldeep, any comment? Pooja, Ahsan, can you hear me now? Any comments? So please, before leaving that, please fill up the form. Vishwas, sir, can you hear me now? Yes, sir. Any Sir, comments? what is your YouTube channel name? I will share. Please share the your email. So I will share all my detail. Please fill up the form, and we get your email ID, and we send my channel also. So I you have can filled go up the through all form, the sir. data science stuff. Correct? Okay, sir. Okay, definitely. Students, any Uh, question? so Any question, otherwise, students? yeah, any question you can ask me. Otherwise, Fine. So there are no more questions. okay, So okay, sir. thank you, sir. The Thank you, session thank was you. really fabulous because you have taken all the concepts which are needed for this topic to be discussed, and all the students will be surely getting a huge amount of experience, knowledge from this particular session. Now we are in the concluding stage. So before that, I would like to thank Daud sir, Asim sir for having such a wonderful communication. And within a very short time, we have organized this whole session. And even though there were certain issues regarding the time slot and the scheduling part, but still everything happened very smoothly. And the most important part is, even though in this pandemic, when people are thinking about their own selves to maintain their own self, maintain their own space, maintain their own life, our sir has tried their level best and given 100% for this particular learning teaching process. So they have boosted, they have not just boosted, they have added the fuel, and they have made this particular journey go much more longer. So Daud sir, thank you very much. I would once again thank all the students for giving their enthusiastic responses to the sir, for asking their doubts, for sharing their views. And then lastly, I would like to thank our principal sir, Dr. Ufade sir. He has given us the platform to arrange this session, all the management committee members, all the management body members of our MVP RSM Polytechnic and MVP Samstha. So on behalf of them, I once again thank you to Daud sir, Asim sir for this wonderful session. Thank you, sir. Thank you so much. So with the pre-pair permission, I announce that this particular session is concluded. Students, you can leave. Okay, thank you, sir.